اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آغا طاہر اعجاز ہے اور میں پنجاب گروپ آف کالجز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے معزز والدین اور عزیز طلباء طالبات آپ کے ساتھ کچھ گزارشات شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حقائق کو جان سکیں۔ آج سے چند روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ رپورٹ کیا گیا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک طالبہ کے ساتھ کیمپس 10 گلبرگ لاہور میں زیادتی کا واقعہ مرتکب ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے تمام حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب گروپ آف کالجز، جس کا آپ بھی پارٹ ہیں، میں بھی پارٹ ہوں، اس خاندان میں تقریباً 6 لاکھ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں سٹاف ہے، ٹیچرز ہیں جو کہ مصروف عمل ہیں آپ ہی کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہم اساتذہ ہیں، ہمارا پیشہ نبیوں کا پیشہ ہے، ہم ہمیشہ سچ حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پاس پڑھنے طلبہ و طالبات کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے، اپنے بیٹے سمجھا ہے، اور ہم کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی ایسے عمل میں جو کہ نیگیٹو ہو، جو آپ کے اگینسٹ جاتا ہو، جو ایسے واقعات ہوں، ہم اس کی پشت پناہی کریں۔ حادثات ہو سکتے ہیں، حادثات ہونا قدرتی عمل ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی ایسے مجرم، کسی ایسے ملزم اور کسی بھی ایسے عنصر کی پشت پناہی نہیں کریں گے۔ نہ ہی ہمیں کوئی ایسا ڈر خوف ہے کہ ہم اپنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے، کسی فرد کو بچانے کے لیے ہم آگے آ جائیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ یہ واقعہ جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا، سب سے پہلے ہم نے اپنے تمام CCTV کیمراز کا ریکارڈ چیک کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری ریکارڈنگ میں کیا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ بیسمنٹ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، لیکن ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل سکا۔ ہم پولیس اسٹیشن گئے، ایک پولیس اسٹیشن نہیں 2-3 پولیس اسٹیشن گئے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی درخواست، کوئی ایسی FIR لانچ ہوئی ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ ہم نے پولیس کی معاونت چاہی کہ پولیس ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرے اور ہمارے ساتھ ہمارے کیمپس میں آئے تاکہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچ سکیں، حقیقت جان سکیں۔ پولیس کے تعاون کا شکریہ کہ وہ فوراً ہمارے کیمپس میں آئے اور انہوں نے آ کے خود سے بھی تمام کیمراز کو دیکھا، ریکارڈ دیکھا، اور جتنا ایکوپمنٹ تھا ہمارے کیمرے کا وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور آج تک وہ تمام کا تمام ریکارڈ، وہ تمام کے تمام ایکوپمنٹ پولیس کی کسٹڈی میں ہی ہیں۔ نیکسٹ ڈے ہم نے ان تمام طالبات کے گھروں میں کالز کی جو اس روز کالج نہیں آئی ہوئی تھیں، تاکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو ہمیں اس کی حقیقت پتہ لگ جائے۔ تمام طالبات الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ تھیں۔ کسی اپنی ریزن پر انہوں نے کالج سے آف لیا ہوا تھا، کوئی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ضروری کام ہے، لیکن کوئی بھی طالبہ یا کوئی بھی والد یا والدین میں سے کسی نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی اور نہ ہی کسی ایسی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام ہاسپٹلز کو بھی دیکھا جن کا ذکر سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم جا کے پتہ کریں کہ کیا کوئی ایسی ICU میں یا کسی بھی وارڈ میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی طالبہ یا کوئی ایسی اسٹوڈنٹ موجود ہے، لیکن رزلٹ وہی نکلا کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ آپ ہم سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی وصول ہو رہے ہیں، اور آپ میں سے کچھ طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ کیمپسز میں بھی آئے اور آپ نے اپنا ایک احتجاج بھی وہاں پہ ریکارڈ کروایا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی، جس میں آپ نے یہ کہا کہ کیمراز کا ریکارڈ آپ کو دیا جائے، تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کیمراز کی ریکارڈنگ اس کیمپس کی نہیں بلکہ اس کے پچھلے 7 دن کی تمام ریکارڈنگز پولیس کے پاس موجود ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ہم آپ کو فوری طور پہ وہ ریکارڈنگز اس لیے نہیں دکھا سک رہے تھے کہ ہم اسے مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ سیکنڈلی آپ نے پوچھا کہ وہ گارڈ پولیس حراست میں کیسے آیا؟ اگر وہ گارڈ جس کا نام اون کہا گیا، سوشل میڈیا پہ اس کا نام یہ لیا گیا، وہ پولیس حراست میں کیسے چلا گیا؟ اگر اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ پھر کیوں اریسٹ ہو گیا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی میں وہ گارڈ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کس طرح پولیس کسٹڈی میں آیا۔ سنڈے والے دن SP ماڈل ٹاؤن جناب ایاز صاحب ہمارے کیمپس میں صبح تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے ہماری پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ وہ گارڈ اون کون ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔
वो गार्ड ज़ाहिर है उस दिन छुट्टी भी थी और वो उस कैंपस में मौजूद नहीं था, वो अपने गांव में था। प्रिंसिपल साहिबा ने उसके नंबर पे कॉल की, उसने कॉल पिक की और उसने कहा जी मैं अपने गांव में मौजूद हूँ। प्रिंसिपल साहिबा ने एसपी साहब के कहने पे उसे कहा कि वो फौरन लाहौर आए ताकि उसे शामिल तफ्तीश किया जाए, उससे पूछगछ की जाए। उसने मनोन अमल किया और उसने लाहौर आने के लिए अपने इंचार्ज को मैसेज भी किया कि मैं लाहौर के लिए रवाना हो गया हूँ। लाहौर के करीब या किसी भी जगह जब वो पहुंचा तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अभी भी वो पुलिस के पास है और उससे तफ्तीश जो है वो की जा रही है। हम हमेशा से एक फैमिली की तरह है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारी फैमिली है, हमने यहाँ इतना अरसा गुजारा है। आप सब हमारे पास आते हैं, कुछ साल यहाँ रहते हैं, फिर आप आगे चले जाते हैं और आप ही जैसे बहुत सारे तलबा और तालबात आज वतन अजीज की खिदमत कर रहे हैं। आपके अपने फैमिलीज के अंदर वो लोग मौजूद होंगे जिससे कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में भरपूर अंदाजा है। आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आ रही है कि बेसमेंट के अंदर तालबा बंद हो गई, किसी तरह से वो तय खाने का दरवाजा बंद हो गया जिसका फायदा उस गार्ड ने उठाया। तो अजीज तालबात, आप तो जानती हैं कि उस कैंपस के अंदर जो बेसमेंट है, जो तय खाना है, उसमें कोई दरवाजा ही नहीं, कोई जंगला ही नहीं, कोई शटर ही नहीं जिसको बंद किया जाए या जो एक्सीडेंटली बंद हो जाए। वो तो एक ओपन सी स्पेस है जहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त है, आपकी वैन्स की आमदोरफ्त है। जो आउटर गेट है कॉलेज का वो उसके बाद है, दरमियान में भी ओपन स्पेस है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जो बंद हो और जहाँ पे ये वाकया रूनुमा हो। आप लोगों ने सवाल किया कि उस गार्ड को पकड़ने का मकसद फिर क्या है, तो मकसद जाहिर है यही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका नाम आ रहा है तो उसी से तफ्तीश की जाएगी ना, उसी से पूछगछ की जाएगी ना। उसे पुलिस को दे दिया गया, उसके साथ 2-3 और लोगों को भी दे दिया गया कि जो भी मामला है वो अच्छी तरह से उसकी तहकीक हो जाए, उसके बारे में पता लग जाए। वो विक्टिम स्टूडेंट कौन है, कितने नाम हमारे सामने आए, उन तमाम नामों को हमने अपने सिस्टम से निकाला, उनके घरों में कॉल्स की, उन तमाम नामों के वालिदैन से बात की, स्टूडेंट से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब महफूज हैं, अपने घरों में हैं। किसी ने कोई ऐसी परेशानी का या ऐसे वाक़े का इजहार नहीं किया। इसके बाद आपने बताया कि क्यों हमें एहतजाज से रोका गया या हमें क्यों नहीं कैंपसेस में आने दिया जा रहा। तलबा और तालबात, आप लोग कैंपसेस में आए, आपने आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने आपको नहीं रोका। आप कैंपस के अंदर आए, आप क्लासेस में गए, आप ऑफिसेस में गए। प्रॉब्लम तब पैदा हुई जब बाहर से कुछ ऐसे अनासिर, शरपसंद अनासिर, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आकर वहाँ पे शामिल हो जाना और वहाँ पे आके दंगा फसाद करना, नुक्स अमन पैदा करना था, उन्होंने इंस्टिगेट किया आपके जज्बात को, उभारा आपके जज्बात को और फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ के सिलसिले शुरू हो गए जो कि यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और हमने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से कोई नुकसान ना हो जाए, हम वहाँ मौजूद रहे। आपके सवालात के इतने बड़े मॉब में जवाब देना तो जाहिर है उस तरह मुमकिन नहीं, इसलिए हम अपना मैसेज आपको पहुँचा रहे हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी कैंपेन है, उस तमाम कैंपेन को अगर देखा जाए तो कहीं पे भी कोई एक बात नहीं की जा रही जिससे ये साबित हो कि ये विक्टिम है, ये फैमिली है, इस तक पहुंचा जाए। आखिर वो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रही है, अगर उस स्टूडेंट की कोई क्लासमेट, कोई फ्रेंड है तो वो हमें बताए, हम फौरन उस मसले को हल करेंगे। लेकिन अभी तक नदारत कोई ऐसी चीज सामने ही नहीं आ सकी। इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जितनी कैंपेन थी, इसको आप गौर से देखें, इसमें चीज़ों को देखें। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था जिसमें 2 तालबात को दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जी ये वहाँ पे जख्मी हो गई, इनको स्ट्रेचर पे लाया गया। तो अब गौर तो करें, उन्होंने स्वेटर पहने हुए हैं। लाहौर का कि आज मौसम ऐसा है कि लड़कियां स्वेटर पहन के आएंगी, जर्सियां पहन के आएंगी। वो शायद किसी ब्लड कैंप का सीन है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर दिया। इस किस्म का तो प्रोपेगेंडा है। किस चीज़ पे आप एतमाद करेंगे? मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान के बारे में बताएं। हम भी आपको क्लासेस में ये गाइड करेंगे कि सोशल मीडिया क्या है, आपको किस तरफ लेके जा रहा है। हर खबर सच्ची खबर नहीं है, हर खबर का नतारा हमने खुद करना है। हमने देखना है कि इसका सोर्स क्या है। आपके इमोशंस, मेरे इमोशंस वाकई ऐसे ही हैं कि ऐसा वाकया हुआ होगा तो हमारा दिल करेगा कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त ना करें जो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। हमारी फीलिंग्स भी वैसी ही हैं। हम आज भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो हम आगे बढ़कर सजा करार वाकई सजा दें ऐसे लोगों को, लेकिन कुछ सामने तो आए, कुछ है ही नहीं।
सोशल मीडिया पे इतना प्रोपोगंडा, इतनी चीज़ें, ये चीज़ जो लोग कर रहे हैं उनके मकासद क्या हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी अथॉरिटीज़ का, अपने तमाम ऑफिशियल्स का, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है, उनके किए की सज़ा मिलेगी। मैं ये भी शुक्रगुजार हूँ कि आज एक कमेटी बना दी गई जिसमें नामवर एजुकेशनिस्ट शामिल हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस शामिल हैं, DPI शामिल हैं, कुछ और इदारों के प्रिंसिपल्स शामिल हैं, जो बिल्कुल एक इनडिफरेंट तहकीक करेंगे और हम बिल्कुल जैसे वो चाहेंगे हम उनको रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, उनको तमाम के तमाम हकाइक भी बताएंगे। हमारे कैंपसेस में वो आज भी वो लोग आए थे और आइंदा भी आए और आके तमाम चीज़ें देखें। हम तो उनके साथ खड़े हैं ताकि हमें भी इस हकीकत का इल्म हो सके कि बात है क्या। तो जब बात में कुछ वज़न ही नहीं, कोई बात ही नहीं, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होगी तो हमारा रद्द अमल ये है, हम आपके साथ खड़े हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को समझाएं, बच्चों की तरबियत के लिए हम भी मौजूद हैं। कैंपसेस में आएँ, अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखें। महदूद सा सेशन है, आपका मुस्तकबिल बहुत कीमती है। अपने मुस्तकबिल को सुनहरा करने के लिए पंजाब कॉलेजेस ने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा हम ओपन होते हैं, हमेशा आपको वार्म वेलकम करते हैं। आप हमारे स्टूडेंट थे, हैं, आप जब भी कभी आते हैं आपको हमेशा वार्म वेलकम मिलता है अपने असातिज़ा से, अपने तमाम के तमाम स्टाफ से। तो अपने बच्चों को कॉलेजेस में भेजें, कैंपसेस में भेजें, ताकि हम तालीमी सिलसिले को बखूबी जारी रख सकें। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अभी DIG ऑपरेशन जनाब फैसल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि वो भी इसी तलाश में हैं, वो भी यही बात जानना चाह रहे हैं कि वाकया है क्या, विक्टिम है कहाँ, लेकिन कुछ भी अभी तक आश्कार नहीं हो रहा। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी ज़रूर सुने, आपको और हकीकत का भी इल्म हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की खबरों को किसी भी तरह से जब भी आप कोई उस पर अमल करें तो ये ज़रूर सोच लें कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान ना हो जाए जिस पर हमें पछताना पड़े। खबरें झूठी हैं, खबरें सच्ची हैं, हमने फैसला करना है, हमने देखना है। अल्लाह ताला ने हमें हिकमत दी है, हमने देखना है। बच्चों को तंबीह करें कि वो क्लासेस में आएँ, कैंपसेस में आएँ और पढ़ने के लिए आएँ। अगर उनके कोई सवालात हैं, कोई बात उन्होंने पूछनी है तो असातिज़ा भी मौजूद हैं, दीगर स्टाफ भी मौजूद है। हम सब हाजिर हैं, आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।